السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کی درخواست کے بعد غزہ کی ناکہ بندی میں نرمی کر رہا ہے اور وہ مصر سے غزہ میں داخل ہونے والی امداد کو نہیں روکے گا، جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سرحدی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ کچھ امداد غزہ کے متاثرین تک پہنچ سکے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ پر جوابی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ بجلی، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی کمی کی وجہ سے صورتحال بدستور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پناہ اور امداد کے متلاشی غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کھلنے کے منتظر ہیں۔ اسی دوران سڑکوں کی مرمت کے لیے مشینری مصر سے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں بھیجی گئی ہے تاکہ امداد کی ترسیل کی تیاری کی جا سکے۔ صدر بائیڈن جمعرات کی شام مشرق وسطی کی صورتحال اور روس یوکرین جنگ کے معاملات پر قوم سے خطاب کریں گے۔ وہ حال ہی میں اسرائیل کے دورے سے واپس واشنگٹن پہنچے ہیں۔ امریکہ نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی ترسیل کے لیے وقفوں کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ یہ امداد غزہ کی پٹی تک پہنچائی جا سکے۔ برازیل کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد پر گزشتہ چند دنوں میں 2 بار ووٹنگ مؤخر کی گئی، لیکن کل اس قرارداد پر ہونے والی ووٹنگ میں 12 ارکان نے اس مسودے کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ روس اور برطانیہ غیر حاضر رہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی اپیل کی تھی تاکہ یرغمال افراد کی رہائی اور غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد پہنچانے کا بندوبست ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے سفارتی کوششوں میں چین کے صدر نے مصر کے وزیر اعظم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ جنگ میں جنگ بندی سب سے فوری اور اہم کام ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ نے اس جنگ کے حوالے سے آج ایک بیان میں کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا سنگین خطرہ ہے اور روس مشرق وسطی میں کشیدگی کے حوالے سے ترکی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگجوؤں نے جمعرات کو سرحدی گاؤں منارہ پر کم از کم 2 اینٹی آرمر میزائل اسرائیل پر فائر کیے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جمعرات کو غزہ کے وسطی قصبے دیر البلح میں ایک مسجد پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ کیا گیا۔ یہ بمباری کا تازہ ترین حملہ تھا۔ دیر البلح اور دیگر مقامات پر فلسطینیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے عسکری پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کا پیچھا کر رہی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ حماس اکثر مساجد اور دیگر شہری مقامات کو حفاظتی ڈھانچے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس دعوے کو فلسطینی مسترد کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک 2 روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور حماس کے 7 اکتوبر کے حملے سے پیدا ہونے والے بحران سے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنا ہے۔ ایران کے صدر نے بدھ کے روز مسلمان ممالک سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی تازہ ترین جنگ 11ویں دن بھی جاری رہی۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران یا بام اور دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز چاہتی ہیں کہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات فوری طور پر منقطع کیے جائیں، اس کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے اور اس کے سفارت خانے
बंद कर दिए जाएं। ईरान ने अस्पताल में होने वाले धमाके के रद्द अमल में बुध को एक दिन के शोक का ऐलान किया है। चीन के वजीर आजम ली कीशियांग ने कहा है कि वो पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी को फरोग देने के पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन के वजीर आजम ने ये बात पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम से बीजिंग में होने वाली मुलाकात के दौरान कही। चीन के वजीर आजम की पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात से पहले दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी मंसूबे से मुताल्लिक मुफाहिमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए, जिनमें अरबों डॉलर का कराची से पेशावर ML1 रेलवे का मंसूबा भी शामिल है। अफगानिस्तान से मुल्हिका पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में बुध की रात अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 3 एहलकार जान दे बैठे। मकामी हुक्काम का कहना है कि इस हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार लापता भी हुए हैं। अभी तक किसी फर्द या ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम मकामी हुक्काम इसे कलदम शिदत पसंद तंजीमों की कार्रवाई करार दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान अस्करियत पसंदों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह तीसरा हमला है। सोमवार को शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के 2 मकामात पर होने वाले हमलों में फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के जारी करदा बयान के मुताबिक 2 एहलकार जान की बाजी हार गए। जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले हमले में हुक्काम ने एक मुबैना अस्करियत पसंद के हलाक होने का दावा किया है। अक्टूबर के महीने में इन 2 कबायली इलाकों में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 8 अस्करियत पसंद, 4 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम लोग जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान उन्हें 21 से 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। एक अलग पेशरफ्त में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करते हुए साबिक वजीर आजम को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। फाजिल जज ने कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम पर तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां लेने का इल्जाम है और अदालत इस केस में नवाज शरीफ की मुसलसल अदम पेशी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी थी। सैकड़ों यहूदियों ने बुध के रोज वाशिंगटन में एक रैली निकाली और बाइडन इंतजामिया और कांग्रेस पर इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा किया। यूएस कैपिटल पुलिस का कहना है कि उसके अफसरान ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है, जिन्होंने मुंतशिर होने के अहकामात की तकमील करने से इनकार कर दिया था। तकरीबन 500 दीगर मुजाहिरीन ने कैपिटल हिल के करीब एक अहम सड़क को ब्लॉक कर दिया था। यूनान में बाएं बाजू के गिरोहों और फलस्तीनियों की जानिब से एक मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें 10,000 के करीब लोग शरीक हुए। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। शुराका ने एथेंस में इसराइली सिफारत खाने की तरफ पेशकदमी की कोशिश भी की, ताहम किसी गिरफ्तारी या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अराकीन जुमेरात को स्पीकर के इंतखाब के लिए तीसरी मरतबा वोट डालेंगे, जहां गुज़श्ता 16 दिनों से ऐवान में कोई लीडर नहीं है। रिपब्लिकन रुकन जिम जॉर्डन 2 बार 217 वोट हासिल करने में नाकाम रहने के बाद आज तीसरी मरतबा ऐवान से मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता ओहायो के कानून साज जिम जॉर्डन बुध के रोज 22 साथी रिपब्लिकन्स के वोट हासिल न कर सके। रिपब्लिकन्स के एक छोटे से ग्रुप ने 3 अक्टूबर को
केविन मैकार्थी को स्पीकर के ओहदे से हटा दिया था। एक और रिपब्लिकन स्टीव स्कैलिस ने गुज़श्ता हफ्ते 217 वोट हासिल करने में नाकाम रहने के बाद स्पीकर बनने की कोशिश तर्क कर दी थी। यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखिला ने जुमेरात को जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में यहूदी इबादतगाह पर हमले और बेल्जियम और फ्रांस में मुश्तबा इंतहा पसंदों की हलाकतों के बाद यूरोप में इसराइल और हमास के दरमियान जंग के असरात से निपटने के तरीकों पर तबादले ख्याल के लिए मुलाकात की है। इस मौके पर एक मीटिंग में स्वीडन ने जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस समेत 8 मुल्कों की इस मामले पर तवज्जो मरकूज कराई कि इन वाकयात से कैसे निपटा जाए। स्वीडन के हुकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीर को ब्रसल्स में मैच से कबल ट्यूनिस के एक शख्स का फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और एक को जख्मी करने के पीछे क्या मुहर्रिक था। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने प्योंगयांग के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जुमेरात को शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की। रूसी खबरसां इदारों ने बताया है कि यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। इससे कबल जुमेरात को लेवरोव ने शिमाली कोरिया के वजीर खारजा से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद गहरे ताउन को सराहा। चंद रोज कबल अमेरिका ने कहा था कि शिमाली कोरिया ने रूस को असलहे की एक खेप मुंतकिल की है। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम मर्सी कोर के कंट्री डायरेक्टर बराए अफगानिस्तान डेने करी का कहना है कि अफगानिस्तान बदस्तूर नाजुक सूरत हाल से दो चार है। खुसूसन मुतादिद ज़लज़लों ने हजारों जानें ली हैं और हजारों खानदान खैमों पर रहने में मजबूर है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को इस जरूरत के वक्त सूबे हिरात के लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी अफगानिस्तान में 7 से 15 अक्टूबर के दरमियान आने वाले ज़लज़लों के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 1,14,000 से ज्यादा मुतासर अफराद को जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की फौरी जरूरत है। WHO की ज़ेर क़यादत सेहत के शोबे को $7.9 मिलियन की जरूरत है ताकि मुतासरा कम्युनिटीज को अगले 6 महीनों में जरूरी सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर नदीम याकूब के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।